वेलकम एस्पिरेंट्स फॉर द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ प्लैटिनम आईएएस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट ने 50 स्कॉलरशिप निकाली है 50 मेरिटोरियस बच्चों के लिए, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप मुखर्जी नगर सेंटर पे कभी भी किसी भी संडे को आके दे सकते हैं, बिटवीन ऑफ कोर्स 9 to 6 के बीच में। हर एक बच्चे के लिए एक यूनिक टेस्ट होगा जिसका डिफिकल्टी लेवल सेम रखा जाएगा, और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंतर्गत आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक का ये लेक्चर, जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उनके अलग अलग यूजेस क्या हैं। There is a spot above the earth where a satellite can match the same rotation of the earth. धरती की सतह के ऊपर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सैटेलाइट जो रोटेशन स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड है, वो रोटेशन ऑफ द अर्थ के बराबर आएगी। ये जो प्लेस होता है ये हाई अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि दूर है, सतह से काफी ऊपर है। इससे पहले हम आगे बढ़े हमें ये जानना जरूरी है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। The Earth and its movements. The Earth is the third planet from the Sun, and it has a unique characteristic that no other planet we know has. It's the only one that has life on it. Life of all types, plants, animals. Its average temperature is 15 degrees Celsius. Because our planet also has water and an atmosphere, it is the perfect place for life. Like other planets of the solar system, the Earth moves in two different ways. One is called rotation, and the other is called revolution. Rotation is the movement of the Earth on its own axis. Rotate means to turn, so the Earth turns around a slightly inclined imaginary line that joins the two poles called the axis. Do you know how long it takes to make a complete turn? It takes 24 hours to make one rotation. Think about it for a second. One day and night together, lasts 24 hours too. So the movement of rotation causes day and night. Interesting, right? Now let's see the movement of revolution. As you can see in the pictures, the Earth goes around the Sun in an elliptical orbit. That might sound a little strange, but if you look, you'll see it's simply the journey that the Earth makes around the Sun. Know how long it takes the Earth to make a complete revolution around the Sun? Well, it takes 365 days. Exactly 1 year. This revolution movement is what makes the spring with its colorful flowers, the hot summer full of fun, the autumn when leaves fall from the trees to the ground, and the cold and frosty winter. So let's remember the two kinds of movement that the Earth makes. There is rotation, which is the Earth turning around itself, causing day and night, which lasts exactly 24 hours, the same as a whole day. And there is revolution, which is the Earth traveling around the Sun, which takes 365 days and causes the seasons. So now you know the movements of the Earth. Goodbye everyone, and don't forget to subscribe to Happy Learning. जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो हुए
जियो मतलब अर्थ हो, सिंक्रोनस मतलब कि सिंक कर रहा है, मतलब कि मैच कर रहा है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो हुए जो कि हाई अर्थ ऑर्बिट कैटेगरी में रखे हुए सैटेलाइट्स हैं, उस ऑर्बिट में पाए जाने सैटेलाइट्स जिनकी ऑर्बिटल स्पीड्स जिनका जो टाइम पीरियड है उस ऑर्बिट के अंदर इज एग्जैक्टली द सेम एज द अर्थ का जो टाइम पीरियड है रोटेशन का, रेवोल्यूशन के नहीं रोटेशन का, क्योंकि रेवोल्यूशन में तो पूरा साल लगता है जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं। अर्थ के रोटेशन में एग्जैक्टली बोला जाए तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड लगते हैं। और ये स्पॉट जो हाई अर्थ ऑर्बिट कैटेगरी में ये सिंक्रोनस ऑर्बिट में आता है, ये 42,164 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है और धरती की सतह से ये 35,786 किलोमीटर है। तो हमने क्या देखा कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है टाइम पीरियड के आधार पर जियो सिंक्रोनस कहलाते हैं, यानी तकरीबन 24 घंटे में वो अपना ऑर्बिटल टाइम को कंप्लीट करेंगे। ये सेम प्लेन में होंगे धरती के, लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से डिफरेंट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस मतलब उनका टाइम पीरियड भी 24 घंटे का होता है। वन मोर थिंग इज देयर, दे आर प्लेस्ड एट द इक्वेटर, यानी कि जियो स्टेशनरी को जियो स्टेशनरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो इक्वेटर पर पाए जाते हैं, इक्वेटर पर रखे जाते हैं। हालांकि उनका भी टाइम पीरियड 24 घंटे का ही है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, एक ऑब्जर्वर है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होगा वो क्योंकि इक्वेटर पे है, तो यहाँ से आपको सुबह के 9 बजे, दोपहर के 12 बजे, शाम के 6 बजे, रात के 12 बजे और एक ही जगह पे दिखेगा। थ्रू आउट द डे वो आपको एक ही जगह पे लगेगा दिखेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी। जबकि जियो सिंक्रोनस है वो प्रतिदिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 12 बजे, यहाँ उदाहरण में लिया गया तो 12 बजे दिल्ली के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन 1 बजे दिल्ली पे नहीं हो, कहीं और है। एज सिंपल एज दैट। So difference क्या है exactly? Geostationary orbit lying on the same plane as the equator, but geosynchronous has a different inclination. एक एंगल होगा, इंक्लिनेशन का एंगल होगा। इस फिगर से हम समझ सकते हैं। देखिए ये अर्थ की एक्सिस और जो व्हाइट कलर का है दिस इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि इक्वेटर पे है। जियोसिंक्रोनस जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ से दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो प्रेफर्ड होगा। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट अगर एक ही एरिया की स्टडी करनी है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, हम जब वेदर फिनोमिना को स्टडी करना चाहते हैं या हम अपने ही एरिया पे नज़र रखना चाहते हैं, तो हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि हमें उस एरिया की लॉन्ग टर्म नॉलेज चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है डे टू डे, या कहीं वहीं पे साइक्लोन बन रहा है या वहाँ पे साइक्लोन नहीं बन रहा है, टेम्परेचर रेंज है, क्या सी सरफेस टेम्परेचर है। दिस फंक्शन इज डिफरेंट देन द टेलीकम्युनिकेशन पर्पस, जहाँ पे हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई एरिया जो है वो इक्वेटर की साइड पे है तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रखते हैं जैसे कि ऑरेंज कलर के सर्कल में दिखाया है। लेकिन कोई एरिया सब आर्कटिक पोजीशन पे है, जैसे कि रशिया का बहुत सारा एरिया सब आर्कटिक पोजीशन पे आता है, या आर्कटिक एरिया जो होता है वो इंक्लूड कर लिया गया, पोल साइड इंक्लूड कर ली गई। तो वहाँ पे दो पोजीशन को देखिए, जो अर्थ बेस्ड रडार हैं, जो धरती पे रखे हुए रडार हैं, जो सैटेलाइट से रिसीव डाटा कर सकते हैं, वो डायरेक्टली अबव देखेंगे। अगर वो डायरेक्टली अबव देख रहे हैं तो ये रेड कलर में दिखा रखा है। तो यहाँ पे तो ये सिंक्रोनस सैटेलाइट तो एक ही जगह पे नहीं है ना, वो तो मूव कर रहा है। तो ग्रीन कलर का जो हमने रडार दिखा रखा है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की तरफ पॉइंटेड आउट है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो ये ऑर्बिट है, ये जो ऑरेंज कलर के जो सैटेलाइट्स हैं जो जियो स्टेशनरी डायरेक्शन में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे रखे पड़े हैं, इनकी दिए हुए सिग्नल और अर्थ बेस्ड रडार सिग्नल जो कि पोल पे रखे हैं, इनके बीच में बहुत
बहुत सारी बिल्डिंग है, मैन मेड स्ट्रक्चर या नेचर मेड स्ट्रक्चर आ रहा है जो कि सिग्नल को क्या करेगा, बाधित करेगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आप बड़ा सा एलिप्टिकल ऑर्बिट देखेंगे तो ये ऑर्बिट जो है ये चूज किया सोवियत रशिया ने। सोवियत रशिया क्योंकि तब सोवियत रशिया कहा जाता था। 1989 से पहले 15 राज्यों के साथ रशिया जो था उसे सोवियत रशिया कहा जाता था। तो ये देखेंगे हाईली एलिप्टिकल है। इस ऑर्बिट कॉल्ड द तुंद्रा ऑर्बिट इज हाईली एलिप्टिकल। जो यहाँ पे हल्की ब्लू कलर का पोजीशन दिखाया जा रहा है, दिस इज द डिजायर्ड एरिया ऑफ सैटेलाइट कवरेज। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब भी ये सैटेलाइट जो कि तुंद्रा ऑर्बिट में है, जब ये अर्थ से दूर है, इट इज स्लो मूविंग। तो जब स्लो मूव करेगा तो उस जगह पे देर तक रहेगा और यहाँ से ये देर तक ऑब्जर्व करेगा सब आर्टिक पोजीशन को। जब वो धरती के पास आएगा इट इज मूविंग वेरी फास्ट, शॉर्ट ड्वेलिंग टाइम है। और यहाँ पे शॉर्ट ड्वेलिंग टाइम होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये उस एरिया की कवरेज नहीं दे रहा जिसे जो एरिया की कवरेज ऐसे को चाहिए थी एग्जैक्टली। और इस ऑर्बिट के अंदर सिर्फ एक नहीं और सैटेलाइट रखे जाएंगे। सो इन पोजीशन सपोर्ट 3 सैटेलाइट तुंद्रा ऑर्बिट के अंदर है। तो एक सैटेलाइट अगर आपका अवे फ्रॉम द इज नियर टू द अर्थ है, एक एटलीस्ट फार अवे होगा, तो वो एरिया की कवरेज और डेटा वहां से आता रहेगा। द सेम इज द सिचुएशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिक पोजीशन पे। नाउ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है? किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देता है, एक करेक्ट लोकेशन बताता है, करेक्ट पोजीशन बताता है। कैसे हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। जिस ऑर्बिट में रखा जाता है उसे सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 12 घंटे का होता है, 24 घंटे का नहीं होता। और ये धरती की सतह से अबव 20,200 किलोमीटर पे होता है इंस्टेड ऑफ 35,786 किलोमीटर पे, यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट की रेंज में होता है। ये जो सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट में पाए जाने वाले सैटेलाइट होते हैं, इनका जो ऑर्बिट होता है उनकी एसेंट्रिसिटी क्लोज टू 0 होती है, मींस दे आर एसेंशियली सर्कुलर। अब हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को इन 3 सैटेलाइट से देख सकते हैं, सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3। और ये इनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर में, दैट इज गिविंग द एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पोजीशन ऑफ द एक्स ब्रेड्थ, हाइट एंड एक्सेट्रा इन द मैथमेटिकल स्फीयर में, जैसे हम कहते हैं, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। आई होप ये तकरीबन क्लियर हो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश समझने वाले लोगों को। और भी कोई डाउट्स हो, कोई भी चीज़ आपको लगती है कि एक्सप्लेन होनी चाहिए, ट्राई टू गिव इट इन एज स्मॉल टाइम एज पॉसिबल। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि हम किस तरीके से और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।